سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 3۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا سوال باپا جان کی بارگاہ میں یہ ہے کہ محفل نعت شریف جو ہوتی ہے اس میں نعت خانوں پر پیسہ لٹانا مانا پیسہ پھینکنا کیسا؟ اللہ اللہ، اگر اجرت کی طرح ترکیب نہیں ہے، یا تو طے ہوتا ہے کہ بھئی اتنے پیسے دینے، اتنے ہاتھ میں دینے اور اتنے لٹانے آ کے دینے تاکہ وہ دوسروں کو بھی کھینچ کر ساتھ لائے۔ تو اگر یہ طے ہے اجرت، یا طے نہیں ہے لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ ایسا کرنا ہے ورنہ یہ آئے گا نہیں، تو پتہ ہے کہ یہ مجھے دے گا، یہ پتہ ہے کہ میں لوں گا، تو یہ بھی اجرت انڈرسٹوڈ ہو تو، اور یہ اجرت حرام ہے۔ نعت شریف پڑھنے کی لین دین دونوں گناہ گار ہیں۔ رہا یہ کہ ویسے کوئی طے نہیں ہے نہ انڈرسٹوڈ ہے، بس ویسے ہی نعت شریف اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے، اب کسی نے اس کو نوٹ دیے یا لوٹا ہے تو یہ جائز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم تاجر لوگ ہیں، ہم نے اپنا کچھ حصہ اللہ کی راہ کے لیے رکھا ہوا ہے، جب وہ حصہ ہم نکال دیتے ہیں اس کے بعد جو زکوٰۃ ہے وہ دینی واجب ہے؟ تو زکوٰۃ اپنی جگہ پر ہے، اور ویسے اگر کوئی نفلی طور پر صدقہ کرتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ نہیں، جو پرافٹ آتی ہے اس میں ہم کچھ پرسنٹ رکھ لیتے ہیں۔ پروفٹ میں نہیں ہوتی نا زکوٰۃ کے لیے، تو وہ جو بھی آپ کے پاس مال تجارت ہے یا کرنسی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، سونا چاندی ہے، مال تجارت ہے، تو یعنی مال نامی جن کو بولتے ہیں، بڑھنے والا مال، یا وہ چرائی کے جانور ہیں، چرائی کے جانور، ان میں شرائط پائے جانے کی صورت میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ بس زکوٰۃ کے اپنے احکام ہیں، باقی جو خیر خیرات ہم کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اگر جیسے کہ اگر کوئی تاجر ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری زکوٰۃ سال کی 10 لاکھ بنتی ہے، اور وہ روز مرہ یا کچھ نہ کچھ اپنے آمدنی سے یا اپنی جو بھی ہے اس پہ سے لاکھ روپے، 50,000 روپے، 10,000 روپے دیتے چلے جائیں، اور جب سال پورا ہو تو 10 میں سے گویا کہ انہوں نے 5 لاکھ یا 6 لاکھ زکوٰۃ کے طور پر انہوں نے زکوٰۃ کے مستحق جو زکوٰۃ کے جس کا دینے کا چاہیے وہ دے چکے، تو کیا اب وہ جو 10 لاکھ میں اس میں سے 5 لاکھ روپے مائنس کر دیں جو پہلے زکوٰۃ کے نام پر دے چکے؟ اگر زکوٰۃ کی نیت تھی زکوٰۃ کی، اور جس کو دیا وہ بھی زکوٰۃ کا حقدار ہے، اس صورت میں تو وہ ایڈوانس میں زکوٰۃ نکالنا ہوا، ایڈوانس میں زکوٰۃ نکالنا جائز ہے، آخر میں یہ بھلے کاؤنٹنگ میں شامل کر رہے ہیں، اور نیت زکوٰۃ کی ہو۔ یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ بس یہی معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ میرے والد صاحب اکثر بیمار رہتے ہیں، اور والدہ بھی، دل میں وسوسے ہوتے ہیں کہ شاید پڑھائی کے دوران ہی شاید چھوڑ جاؤں، یعنی کہ پڑھائی مکمل نہ کر پاؤں، ایسے وسوسے کس طرح دور کیے جائیں؟ گھر میں پرابلم ہے، گھر میں پرابلم ہوتی ہے۔ درجہ کون سا ہے؟ درجہ ثالثہ BS۔ اور گھر والوں کا مطالبہ بھی ہے کہ چھوڑ دو، کما کے لاؤ۔ نہیں، والد صاحب کہتے ہیں کہ آپ پڑھیں، مگر پڑھیں، حالات ایسے نظر آتے ہیں کہ نہ پڑھ پائیں گے۔
تو پلس اب عطیات بکس بھی کر رہے ہیں، تو مگر ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید نہ پڑھ پائیں. ایسا لگتا ہے نا، ایسا جب لگتا ہے. فائنل ہو جائے تب دیکھیں گے. ابھی لگتا ہے تو لگنے دو، اب اپنے کم میں لگے رہو، پڑھتے رہو. دعا فرما دیجئے کہ والد صاحب ان کو معدے کی مسئلہ ہے اور والدہ ہے وہ دمے کی مریض ہیں، اللہ پاک ان کو شفا اللہ شفا عطا فرمائے. اور ایک ماشاء اللہ پھر بھی والد صاحب آپ کو اجازت دے رہے ہیں، بلکہ فرما رہے ہیں کہ پڑھو. یہ حوصلہ ہے ان کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ نے بتایا تھا کہ 4 فرضوں میں اگر مقتدی یعنی اکیلا نماز پڑھنے والا وہ 4 رکعت میں آیت ملا سکتا ہے. جی جی، تیسری اور چوتھی میں. جی، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے. اس میں یہ کہ جیسے کہ امام ہے اور تیسری چوتھی رکعت میں اپنی اس نے کوئی سورہ فاتحہ سورت ملا لی، تب بھی کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. اس میں علماء کے قول مختلف ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ یہ نہ پڑھے تو اچھا ہے، امام جو ہے بہتر یہ ہے نہ پڑھے. جبکہ جو اکیلی اپنی فرض نمازیں پڑھ رہا ہے 4 رکعتی، تو اس میں تیسری اور چوتھی میں بہتر یہ ہے، مستحب ہے کہ وہ سورت فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ گلے میں تعویذ پہننے کا کوئی ثبوت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے خواب سے گھبرا جائے تو پڑھے. یعنی ایک وہ ورد دیا ہوا ہے، کچھ کلمات ہیں جس کا ترجمہ ہے میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ لیتا ہوں اللہ کی ناراضی سے، اس کے عذاب سے، اور اس کے بندوں کے شر اور شیطانوں کے وسوسوں سے اور شیطانوں کے میرے پاس آنے سے. تو تمہیں یہ جب پڑھ لو گے تو تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی بالغ اولاد کو یہ سکھا دیتے تھے اور ان میں سے نابالغوں کے گلے میں کسی کاغذ پر لکھ کر ڈال دیتے تھے. تو نابالغوں کو یہ صحابی ابن صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما لکھ کر تعویذ گلے میں ڈالا کرتے تھے. ترمذی شریف کی حدیث ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو آپ پر جنت واجب ہو جائے گی، یا یہ عمل کریں گے تو آپ پر جہنم حرام ہو جائے گی. تو جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم پر جنت واجب ہے یا جہنم کی آگ یا جہنم ہم پر حرام ہے، تو پھر بھی ہم نیک عمل کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ روزی دینے والا اللہ ہے کنفرم ہے نا، سب کو پتہ ہے، بند کرو دکان، چھوڑو نوکری. دراصل جو کچھ ہوگا اللہ پاک کی مرضی پر ہوگا. اور اول تو مطلب ایمان ہونا شرط ہے، ایمان پر دنیا سے جانا شرط ہے. انما الاعمال بالخواتیم حدیث پاک میں کہ اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. یوں احادیث مبارکہ کی آگے تفصیل ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہیں. اب جیسے کہ ایک حدیث پاک ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. اب کیا خیال ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے کہ نہیں کہنا؟ حدیث پاک میں لا الہ الا اللہ، تو یہ مخفف ہے. اس میں سارے سمجھو ضروریات دین بھی شرط ہیں. اب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آخری نبی نہیں مانتا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. وہ جنت لاکھ جنت واجب کروانے والے عمل کرتا رہے، جنت اس پر تو ہے نہیں، اس کے لیے جنت تو مسلمانوں کے لیے، یہ تو مسلمان نہ رہا. اسی طرح کوئی جنت کا انکار کرتا ہے، دوزخ کا انکار کرتا ہے، تب بھی وہ یہ کلمہ 100 بار پڑھے، روز کے 1,00,000 بار پڑھے، کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ پورا اسلام جو ہے یہ مطلب، تو اس طرح یہ حدیثیں جو ہے
कि जिनमें एक रिवायत पर ये जन्नत वाजिब या जहन्नम हराम, इसका मतलब ये नहीं होता कि अब सारे आमाल छोड़कर इस पर मतलब यानी कि बस बैठ जाए। तो फिर ये कि नमाज नहीं पढ़ेगा कि चलो ये कहने से जन्नत वाजिब होती है, इन वहीदों का क्या करेंगे कि जो बे नमाजियों के लिए हैं, जो सजाएं हैं, जो अजाबात हैं, उनका क्या होगा। तो इसलिए अपनी अटकल से कभी भी फैसला नहीं करना चाहिए। हदीस पाक के अल्फाज अपनी जगह पर वो दुरुस्त ही होते हैं, लेकिन इनकी शरह, इनका डेप्थ, इसकी गहराई हम नहीं समझ पाते, इसलिए अपनी अटकल से कुछ भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि एक शख्स था, उसने अपने साथ कुत्ता बांधा हुआ था और नमाज पढ़ रहा था। किसी ने बोला भाई ये क्या कर रहे हो, कुत्ता तुमने बांधा तो क्यों। हदीस पाक में कि नमाज में कल्ब को हाजिर रखो, असल वो था कल्ब। इसने वो हदीस कहीं सुनी तकरीर में, तो कल्ब माने दिल, तो कल्ब माने कुत्ता, डंडी वाले काफ से कल्ब। तो वो कहा गया था कि कल्ब को दिल में, कल्ब हाजिर रखो नमाज में, दिल को हाजिर रखो। तो उसने कल्ब को कल्ब सुना तो कुत्ता बांध दिया। ये अपनी मर्जी से जो हदीसें समझते हैं, उलमा से रुजू नहीं करते, उलमा से दूर भागते हैं, बल्कि माज़अल्लाह बुरा भला कह रहे होते हैं। इनको कहाँ मतलब है कि इस्लाम की मिठास मिलेगी, रूहानियत मिलेगी, इस तरह की दीन को ही समझ पाएंगे। तो उलमा ही समझते और वही हमें समझाते। हम हदीस पढ़कर सुनकर अपने तौर पर इसके मतलब माना बना लें तो काम नहीं चलेगा। सारे का सारा मामला अल्लाह पाक की रिजा पर मौकूफ है, ये जहन में रखिएगा। वही होगा जो रब चाहेगा, हम चाहेंगे वो नहीं होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मुर्शिदी अर्जी है कि आप एक वक्त से सुनते हुए आ रहे हैं, इस मुतालिक आप बहुत सी एहतियातें इरशाद फरमाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात देखने को यही मिलता है कि गुफ्तगू में यानी महाफिल से मुतालिक हो या इस तरह के जो काम होते हैं उसमें बहुत से गैर शरई काम हो रहे होते हैं। बाज़ों को समझाया जाए तो समझ जाते हैं और इसके मुतालिक सही काम की तरफ भी आ जाते हैं, लेकिन ऐसा जज्बा, ऐसा एहसास, ऐसी कैफियत कि हमारा जुमला बल्कि हमारी सोच ये भी शरीयत के मुताबिक हो जाए, इसके लिए हम क्या करें। मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। हम जद्दोजहद जारी रखें, समझाते भी रहें। और समझाना हमारा, समझाना ही काम है, मनवाना तो काम है भी नहीं। हमें सवाब मिलता है समझाने से, समझाते रहें। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, ये आयत कुरानी है। और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। लोग मान भी जाते हैं, नहीं भी माने, एक भी ना माने, कोई बात नहीं, हमको सवाब मिलेगा समझाने का, जबकि इखलास है समझाने में, अल्लाह की रज़ा के लिए समझाएंगे तो सवाब मिलेगा। अब जैसे हम ये बोल रहे हैं तो ये सारी बुराइयां रुक थोड़ी जाएंगी, फिर जहन बना हुआ कि नहीं रुकेंगे, हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन हम समझाना नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, कि हमें तो सवाब मिलेगा ना। अब इतना अगर लोग मान लेते होते ना, तो मैं जब से दावत इस्लामी का काम लेकर निकला हूँ 40-41 साल हो गए। शुरू में जब मैं जाता था बयान करता था, तो फिर बयान के बाद लोगों को इकट्ठा करता था कि हम आपसे कुछ मशवरा करेंगे, तो लेके बैठते थे हम इनको, फिर नाम लिखता था। अब माने ना माने सबकी लिस्टें बनाता था, कौन कौन इज्तिमा में आएगा। ये जब पहला इज्तिमा अभी हुआ नहीं था, शुरू की बात करूँ, मैं लिस्टें बनाता था, इतने लोग नाम लिखवाते थे और इतने हाथ उठाते थे, मैंने शायद लाखों लाख मैंने हाथ उठवा लिए होंगे। खैर इज्तिमा से पहले इतने नहीं, लेकिन फिर भी ये तरीका तो था। 4 जुमेरात की नीयत, 11 जुमेरात की नीयतें, 11 इज्तिमा की नीयतें, इसमें भी बैठे होंगे हाथ उठाने वाले पुराने इस्लामी भाई जो बचपन से जानते होंगे दावत इस्लामी को। अभी इन्होंने हाथ उठाकर कितना अमल किया आपने इनको पूछते नहीं है, समझे।
पर्दे में रहने दो। तो ये अगर सब आ जाते ना तो यकीन माने गुलजार हबीब तो क्या, फैजान मदीना के रोड भी भर जाते चारों तरफ। आते नहीं है, खाली हाँ बोलते। अल्लाह जिसको तौफीक दे, जिसका दिल चोट खा जाए तो वो मान लेते, लेकिन ये समझाने से फर्क पड़ता है, बेहतरी आती है। कल तक अगर 10 गुना होते थे तो वो 9 हो जाते हैं, किसी के 8 हो जाते हैं, किसी के 5 हो जाते होंगे, कोई पूरा ताइब हो जाता होगा और 100% आ जाता होगा। लेकिन ये कि ये सब मिला जुला होता है, कोई मानता ही नहीं होगा कि यार पुरानों की बातें, यार मुझे तुम ले गए थे, मुरब्बत में आ गया था, फिर समझ में नहीं आता। ऐसे भी होते हैं, नसीब क्या किया जाए। फिर भी हम इसको भी समझाएंगे, इसके लिए दुआ भी करेंगे कि अल्लाह इसको हमारी बातें समझ में आ जाए। लड़ाई तो करनी नहीं है ना, हमारी लड़ाई तो शैतान से, नफ्स के साथ है, बंदों से तो लड़ना ही नहीं है ना। अल्लाह के नेक बंदों से, अल्लाह के बंदों से, आका के गुलामों से, आशिकार रसूल से लड़ना नहीं है, मारना नहीं है, पत्थर नहीं मारना, इनकी दुकान नहीं बंद करवानी, तो झगड़े नहीं करने, बुरा भला नहीं बोलना, कंजूस नहीं बोलना इनको, जैसा भी चला था। तो हम प्यार देते रहेंगे, मोहब्बत देते रहेंगे तो काम बढ़ता रहेगा। अल्लाह की रहमत है, जब निकले तो कुछ समझ नहीं आती थी कि कैसे होगा, लेकिन आज चारों तरफ दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह आपको नजर आ ही रही है ना। खाली कराची में नहीं है ना, दुनिया कई ममालिक में काम कर रही है दावत इस्लामी। तो आप सब अमन का पैगाम देंगे, प्यार मोहब्बत देंगे, जज्बात में जोश में आकर ये पथराव घेराव झगड़ाओ ये नहीं करोगे ना, तो इंशाअल्लाह आपकी बज़्म भी कामयाब होगी, आपकी अंजुमन भी चलती रहेगी जो भी है। वरना ये कि टूट फूट का शिकार हो जाएगी, लड़ भीड़ के बैठ जाओगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फ़कीर हकीर असीर नफ्स शरीर बंदा नाचीज़ मोहम्मद समर अब्बास अत्तारी की जानिब से माशाअल्लाह। सय्यदी आपकी खिदमत में अर्ज़ है, ख़ातिमा बिल खैर की दुआ फरमा दीजिए। आमीन। और हुजूर इस पुरफितन दौर में हम अपने ईमान की हिफाजत कैसे करें, कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए। ईमान की हिफाजत तो वाकई दुश्वार तरीन अम्र है, बस अल्लाह की रहमत से ही हिफाजत होनी है। और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है मलफूजात में कि उलमा फरमाते हैं कि जिसको जिंदगी में सल्ब ईमान का यानी ईमान ज़ाया होने का खौफ नहीं होता, खतरा है कि आखिरी वक्त में उसका ईमान सल्ब कर लिया जाए, निकाल लिया जाए। तो इससे यह कि पता चला कि ईमान की हिफाजत की फिक्र होना जरूरी है। और जिस चीज की फिक्र होती है तो ज़ाहिर है कि उसका तहफ़्फ़ुज़ का भी हिसाब किताब रहता है। पैसे होते हैं, रकम बड़ी है तो उसकी हिफाजत की फिक्र होती है, तो वो बच भी जाती है कि आदमी इधर छुपाएगा उधर छुपाएगा, एहतियात करेगा, ऐसी जगह नहीं जाएगा जहाँ मतलब खतरा है कि ये लूट जाए। तो इसी तरह ईमान बचाने के लिए भी ऐसी जगह नहीं जाना कि यहाँ लूटने का खतरा हो, ये भी ठीक वो भी ठीक, इसको सुनो उसको सुनो, इसमें ईमान का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए सिर्फ अपनों को ही मतलब है कि वो सुनना चाहिए, अपने भले अपनी दावत इस्लामी भली, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें क्या कमी है। तो फिर ये कि कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब ये, अगर किताब ना पढ़ी हो तो जरूर पढ़ लें और अल्लाह पाक से दुआ भी करते रहें और आदो वज़ाइफ भी करते रहें। जैसे कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने एक विर्द ये भी दिया है कि सुबह के वक्त या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत 41 बार 41 टाइम रोजाना पढ़ ले। सुबह होती है आधी रात ढले से सूरज की पहली किरण चमकने तक, ये सारा जो पीरियड है ये सुबह कहलाता है, मॉर्निंग। इसमें ये अगर पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ईमान महफूज रहेगा। रात को भी अपने औराद जब भी सोए तो औराद पूरे करने के बाद आखिर में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लें। और अगर बातचीत ना करें, अगर आप कोई बातचीत कर ली, कलाम कर लिया, तो फिर सूरह काफिरून पढ़ लें ताकि आखिरी कलाम यही हो, तो इंशाअल्लाह इसी पर खातिमा होगा। इस तरह औरात भी करते रहें, मालूमात भी रखें। कलिमात कुफ्र का इल्म हासिल करना ये फर्ज है, जी हाँ फर्ज उलूम में से और फर्ज आइन है। पता नहीं होगा तो बचेगा के साथ में, इसको पढ़ते भी रहें। तो कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब ये पढ़ लें। उर्दू
माशाअल्लाह तलबा किराम जो बड़े दर्जे के उनकी तो अच्छी होती होगी, तो ये 9वें हिस्से में बहार शरीयत के 9वें हिस्से में भी कुफरिया कलिमात के बारे में मालूमात है। मुर्तद का बयान गलबन ये उसका नाम है, ये जरूर पढ़ ले। इसमें भी कुछ ऐसी डिटेल है जो उस किताब में नहीं है, उस किताब में और बहुत कुछ है, तो ये भी पढ़ लें। बहार शरीयत का पहला हिस्सा पढ़ लें, इसमें भी काफी ईमानियात के हवाले से जरूरी मालूमात है और बहुत जरूरियात दीन का उसमें काफी मवाद है, इसका भी मुताला फरमाएं। अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहें कि अल्लाह पाक हिफाजत करे। अब जैसे कि या अल्लाह मेरा बुरा खात्मा ना हो, मुझे बुरे खात्मे से बचा, अच्छी बात है, लेकिन साथ में आफियत का भी तस्करा होना चाहिए। जैसा कि एक शख्स का वाकया है कि वो आग में जलकर फौत हुआ, ख्वाब में देखा गया, पूछा क्या मामला हुआ, बोला वो मैं दुआ किया करता था कि या अल्लाह मुझे ईमान पर मौत आए, तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ, ईमान पर मौत आई और कहा गया कि अगर तुम साथ में आफियत भी मांगते तो तुम्हें हम जला कर ना मारते। अल्लाह अकबर। आफियत, अल्लाह पाक ईमान और आफियत के साथ खातिमा फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या सैयदी मोहम्मद तनवीर अत्तारी मदनी फैसलाबाद सरदाराबाद से हाजिर हुआ हूँ। हुजूर जी आया नु जज़ाकल्लाहु खैरन। हुजूर अमाल वाले तो यहाँ से हिस्सा लेके जाते हैं सखी के माल में हकदार हम भी, तो सखी के माल में हमारा भी हिस्सा है, हुजूर वो भी अता फरमाएं। अमाल के अंदर कैसे इस्तिकामत रह सकती है, अमल में इस्तिकामत नहीं रहती, चंद दिन होते हैं फिर सुस्ती का शिकार हो जाते हैं, तो इसमें रहनुमाई फरमा दीजिए। बुजुर्ग का लिखा कि 20 साल तक वो करते रहे अमल, नफ्स को अपने बतकल्लुफ इस पर मजबूर किया। फरमाते हैं 20 साल तक तो मैंने बतकल्लुफ किया अमल इबादत, और 20 साल तक मैंने नफा उठाया, तो फिर ये कि इस्तिकामत मिल जाती है, दिल लग जाता है। तो खाली बोलने से कि इस्तिकामत नहीं मिलती यार, इस्तिकामत नहीं मिलती, ये बातों का जहन बन जाता है यार मुझे इस्तिकामत नहीं मिलती। तो इस तरह ये नफ्सियाती तौर पर भी ये उसके लिए नुकसान दे। जैसे बात बोले यार मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो गुस्सा बहुत है यार, गुस्सा नहीं जाता, गुस्सा बहुत आता है, तो जो यूं करता रहेगा ना वो वाकई गुस्से वाला बन जाएगा। या लोग अगर कहें कि ये गुस्सा बहुत आता है, जलाली है, गुस्से वाला है, तो ये भी नफ्सियाती तौर पे वो गुस्से वाला बन जाएगा। तो इसलिए अपना जहन बनाए कि अब तो मैंने दुआएं भी मांगी है या फुला फुला को दुआ का कहा है कि मेरे को इस्तिकामत मिले, तो बस अब तो मिलनी है इस्तिकामत इंशाअल्लाह, और अपना अमल यूं जारी रखे, मायूसी की तरफ न जाए बल्कि कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मंजिल मिलेगी, इंशाअल्लाह इस्तिकामत भी मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। यहाँ आके बहुत ही खुशी हुई, इतनी मुनज़्ज़म, वेल डिफाइंड और सिस्टमेटिक तरीके से जो तहरीक चल रही है, इसको देख के बहुत ही रक्श हुआ है। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस तरह रवायती जो पीरी मुरीदी चल रही है, जो कि नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है, तो ये क्या इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट तो बहुत कम नज़र आते हैं, जो क्योंकि कुछ उसमें से नस्ल में से कुछ जो जानशीन होते हैं वो इस अहल नहीं होते जो कि एक मुर्शिद को होना चाहिए। एक क्या इसका एक मेयार सेट होना चाहिए या नस्ल दर नस्ल होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? ये 4 शर्तें हैं पीर की। एक तो ये कि वो सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, दूसरे ये कि आलिम दीन हो। आलिम दीन से मुराद वो कि जो अपने अकायद से पूरी तौर पर वाकिफ हो और ज़रूरत के मसाइल जानता हो, ज़रूरत के मसाइल बगैर किसी की मदद के किताबों से निकालने की सलाहियत रखता हो, और इसका सिलसिला
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता हो, इसमें सैयद की हैसियत से नहीं बल्कि खिलाफत की हैसियत से, तरीक़त में कि इसका खलीफा उसका खलीफा, जैसे कि कादरिया सिलसिले में बढ़ते बढ़ते गौस पाक तक ये सिलसिला पहुँचता है, फिर मज़ीद आगे बढ़कर इमाम हुसैन तक ये पहुँचता है सिलसिला, फिर हज़रत अली पर पहुँचता है रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, और फिर हज़रत अली से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। तो यूं मतलब बीच में कहीं भी वो कट ना लगता हो और फासिक ना हो, अलल ऐलान फिस्क ना करता हो, जैसे नमाज नहीं पढ़ता या जानबूझकर बाजमात नमाजें नहीं पढ़ रहा, या दाढ़ी छोटी काट के कर देता है, दाढ़ी मुंडाता है या एक मुट्ठी से घटाता है, या औरतों के दरमियान बेपर्दगियां, औरतों से हाथ चुमवाना वगैरह वगैरह, के इस तरह का ना हो, शरीयत का पाबंद हो, मगर ऐसा पाबंद हो कि उस पर फिस्क अलल ऐलान का हुक्म न लगता हो। ये शराइत होने चाहिए पीर में। जी, इसी तरह जैसे आप इस तहरीक में जो आपने निगरान मुकर्रर किए हैं, ज़ाहिरी बात है वो एक ख़ास मुद्दत और इल्म और अमल के साथ वो तय होते हैं, उनके मराहिल जो एरिया से लेकर जो आपके मजलिस तक पहुंचते हैं, उनका एक ख़ास आपने जो सेट किया हुआ है। तो इसी तरह ये तहरीक का आप मुस्तकबिल आपके आगे क्या देख रहे हैं? बस एक अपनी हयात के अपनी मतलब यानी कि अल्लाह की रज़ा अपनी मंजिल है, बस ये मिल जाए किसी तरह। और ज़ाहिर है कि 100% इत्मीनान तो हो नहीं सकता कि अब हमसे रब राजी हो ही गया है ना, बस रब की रज़ा के लिए करते रहना चाहिए। शुरू जब हमने किया तो ये सब कुछ नहीं था, तसव्वुर भी नहीं था कि हम जामियातुल मदीना भी बनाएंगे और इस तरह, तो वो काम को काम सिखाता गया और आगे कूच जारी रही, और एक से एक अहल इस्लामी भाई हमें मिलते रहे अल्लाह की रहमत से, और अब भी आगे इंशाअल्लाह काम करने वाले मिलते चले जाएंगे और यूं इंशाअल्लाह काम बढ़ता चला जाएगा। कोई खास मुतय्यन हदफ नहीं है कि ये हमारा बस इधर तक है, अनलिमिटेड है, चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। मतलब आपका कहना ये है कि जो भी इसके काबिल होगा वो मुतय्यन होगा। अब वो मतलब अंडरस्टूड है कि मतलब जो काबिल होगा वही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल अंडरस्टूड है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल